Namaste, dear student. In today's period, we are discussing some extra information about the triangle. Many information from fifth standard we have developed, used about the triangles. In triangle, we know that we are having three angles. Same letter if I use to the three angles means angle A, angle B, and third angle as a angle C. And we are having three sides. If I call AB, next side is BC, and last is third is AC. Here we are using one symbol. As we know that from this figure we can see here the side BC is opposite of the angle capital A. So we call this side as a small a. So length of that side is called as a small a. So this BC we are seeing as a small a. In 12th standard, the work is about the three information about the sides and three about their angles. So sides are denoted by small letters of the same triangle name. So we are using this BC, which is opposite of the angle A, by its name itself, that is small a. What is about the side which is opposite of the angle B? It is AC, so it is denoted by small b. So AC is denoted by small b. And the side which is opposite of the angle C, it is AB, and that's why it is opposite of the angle C, so it is denoted by small c. So here these three notations we are using for length of the sides, and the angles are same. As the vertex we are using same vertex name is used for the angles, corresponding angles. In solving a triangle means we are developing such formulas in which if three informations are given, how many informations are there about the triangle? In this figure, three are the angles and three are sides. So we are having about maximum, that is 6 information. These 6 information of the triangle are called as the elements of the triangle. What I are saying? What we are saying? These 6 information, 3 angles and 3 sides, we are calling as a elements of triangle. तो आपको सॉल्विंग ए ट्रायंगल, इसका मतलब ये है कि कोई भी 6 में से 3 अगर आपको दिए जाते हैं, 6 में से 3 दिए जाते हैं, ये 3 में एक कंपलसरी साइड होनी चाहिए, दो एक तो साइड होंगे या फिर इसमें से एक साइड या एंगल हो सकता है या फिर दोनों एंगल हो सकते हैं. तो ये 6 में से आपको अगर 3 सप्लाइड है, उसमें से एक कंपलसरी साइड होनी चाहिए. तो ये सिचुएशन में बाकी के 3 जो रिमेनिंग है उनकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं. तो आपके पास तो फिलहाल कोई फॉर्मूला नहीं है 10वीं तक 11वीं तक. तो ऐसे कौन से फॉर्मूले है जो आप यूज करके बाकी के 3 सप्लाइड है और बाकी के 3 निकालना चाहते हैं. तो ये हेल्प करने के लिए जो फॉर्मूलीज आने वाले हैं उनको आपको पहले डेवलप करना है, डिस्कस करना है, प्रूव करना है. तो उसमें से पहला जो है 3 मेजर है, उसमें से पहला जो है वो आप इस नाम से कहना चाहते हैं, दैट इज साइन रूल. तो ये साइन रूल क्या है? साइन रूल ये ट्रायंगल में होल्ड होता है. अगर आप ट्रायंगल को एबीसी लेटर यूज करते हैं तो एबीसी ट्रायंगल में एक्चुअली साइन रूल क्या है? तो साइन रूल का कहना ऐसा है, यहाँ एक इसके बाद में थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन केयरफुल होना चाहिए कि जब ए कहते हैं तो ये 2 जगह पे आता है. तो ए जब कहूंगा तो स्मॉल होगा, जब कैपिटल आप कहेंगे तो उसको एंगल के लिए यूज किया है, ऐसा आपको अज्यूम करना है. तो ये जो एंगल ए है उसको ही आप ए कहना चाहते हैं सिर्फ. तो ए कैपिटल ए is used for angle and small a is used for length of the side. So what is sine rule? Sine rule states that a upon sine of capital A, b upon sine of capital B is equal to c upon sine of capital C. What is the meaning of this? Means these 3 sides small abc are
प्रपोर्शनल, गुणोत्तरामध्ये आहेत, प्रपोर्शनल टू द साइन ऑफ द अपोजिट एंगल्स, साइन ऑफ द अपोजिट एंगल. सो साइड ऑफ ए ट्रायंगल, sides of a triangle are proportional to the sin, SINE, साइन रेशियो आपने यूज किया है, कॉस नहीं. दूसरे फॉर्मूले में आप कॉस यूज करेंगे, साइन रूल में साइन ही आएगा तीनों जगह पे. तो लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द करस्पॉन्डिंग एंगल, दैट इज अपोजिट एंगल. सो ए आपने अगर लिया है तो उस ए के नीचे आपको साइन ऑफ दिस ए देना है. आपने अगर बी यूज किया है तो स्मॉल बी अगर यूज करते हैं तो ये स्मॉल बी कौन से एंगल के सामने वाली साइड है, कैपिटल बी के सामने वाली साइड है. तो बी के नीचे आता है साइन ऑफ दिस बी, कैपिटल बी. और सी जब यूज करते हैं तो सी के नीचे क्या आता है, साइन रेशियो के साथ ये सी एंगल जो आपको यहाँ मिला है, जिसके सामने सी साइड है, उस करस्पॉन्डिंग अपोजिट एंगल को साइन के साथ अटैच करना. तो ये आपका साइन रूल है. अब आपका टारगेट 12th में है कि ये साइन रूल है तो इसको प्रूव भी करना है. प्रूव करने के लिए वेरी इजी प्रूफ है, आपको इस ट्रायंगल की तरफ फिर से वापस आना है. तो प्रूफ में ये ट्रायंगल आपको यूज करना है. तो इस ट्रायंगल में एक कंस्ट्रक्शन है, सिंपल कंस्ट्रक्शन है. क्या करना चाहते हैं, इस ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना चाहते हैं. कहा, इस बीसी के ऊपर चलेगा. इसको आप अगर लेटर कहते हैं डी, और ये बी से लेकर सी तक का लेंथ आपको मालूम ही है, स्मॉल है. तो आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है जिसको आपने एडी कहा है. कौन से साइड के ऊपर, दैट इज बेस के ऊपर. बेस आपका इस ट्रायंगल में दिखाई देता है, दैट इज बीसी. तो यहां आपको दो ट्रायंगल मिलते हैं, बराबर है. उसमें से आपको सिर्फ राइट वाला चेक करना है, राइट वाले को यूज करना है, लेफ्ट वाले ट्रायंगल को यूज नहीं करना है. तो राइट में कौन सा ट्रायंगल है, एडीसी नाम का. अब एडीसी में अगर चेक करते हैं तो एक तो 90 है, बराबर है. और एक एंगल आपने ऑलरेडी सिंबल दिया है, वो सी है. जो सी वर्टेक्स के पास जो एंगल है वो कैपिटल सी नाम का एंगल है. तो आप इस ट्रायंगल को अगर ऑब्जर्व करते हैं तो ये 90 है, एक एंगल सी है. अब 90 के सामने वाली जो साइड रहती है उस ट्रायंगल की, वो तो हाइपोटेनस रहता है, बराबर है. तो हाइपोटेनस से एसी, और उसकी लेंथ क्या है, एसी की लेंथ आपने उस बी से डिनोट की है जो कैपिटल बी के सामने वाली साइड है. ओके. सो इन ट्रायंगल एडीसी we want to use trigonometric definition. What is trigonometric definition? We want to get the value of sin c. आप इस एंगल को साइन लगाना चाहते हैं तो साइन रेशियो को क्या चाहिए, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, समोरिल बाजू भागीले करना. सो अपोजिट साइड का नाम क्या है, एडी, और हाइपोटेनस का लेंथ का नाम क्या है, एसी. तो साइन सी की वैल्यू निकालते समय क्या रेशियो आएगा, एडी अपॉन एसी. जो एडी रहेंगे, लेकिन एसी की तो वैल्यू आप डिनोट कर सकते हैं स्मॉल बी से. तो आपको एडी अपॉन बीसी, एडी अपॉन बी, ये किसकी वैल्यू मिली है, साइन सी की. और ये नीचे का जो बी है अगर इधर लेफ्ट में ट्रांसफर करते हैं तो मल्टीप्लीकेशन में आता है. किसके साथ आएगा मल्टीप्लीकेशन के साथ, साइन सी के साथ. तो ये किसकी वैल्यू तैयार होगी, एडी की होगी. तो एडी की वैल्यू क्या होगी, बी इंटू साइन ऑफ सी. तो एडी इज इक्वल टू बी इंटू साइन ऑफ सी. अब इस ट्रायंगल को एक बार फिर से यूज करेंगे. तो इस ट्रायंगल की आपको क्या मालूम हुई है, हाइट. एडी क्या है, हाइट. इस ट्रायंगल का बेस कितना है, बीसी, उसकी वैल्यू क्या है, ए. तो इस ट्रायंगल का आपको बेस मालूम है, इस ट्रायंगल की हाइट मालूम है, और बेस और हाइट का यूज करके आप क्या निकाल सकते हैं, ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं. ये तो आपने प्राइमरी स्टैंडर्ड से यूज किया है फॉर्मूला. तो एरिया निकालने के लिए कौन सा ट्रायंगल यूज करेंगे आप, बड़े वाला, जो अपना ओरिजिनल ट्रायंगल था, दैट इज कैपिटल एबीसी. इस ट्रायंगल को अगर आप यूज करते हैं तो एरिया निकालने का फॉर्मूला आपको मालूम है, हाफ इंटू बेस दैट इज बीसी इंटू हाइट. तो आपको बीसी की वैल्यू तो स्मॉल ए से डिनोट करना है, और ये जो एडी आपको मिला है वो कितना है, बी इंटू साइन ऑफ सी. और ये नीचे का जो 2 है अगर लेफ्ट में ट्रांसफर करते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी के साथ मल्टीप्लीकेशन में आता है. तो ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू क्या मिला है आपको, ए इंटू बी इंटू साइन ऑफ सी. यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, है ना. यस, आगे चलो. अब ये जो ट्वाइस ऑफ एबीसी आपने फाइंड किया है, ए बी इंटू साइन सी, इसी ट्रायंगल का एरिया दूसरे रास्ते से भी निकाल सकते हैं. सिर्फ क्या कर रहा हूं मैं, इस ट्रायंगल को टर्न करता हूं.
जो आपने बेस बीसी को कहा था, मैं अब इस एबी को बेस कन्वर्ट कर रहा हूं। ट्रायंगल को आपने शिफ्ट किया है, ट्रायंगल को शिफ्ट करेंगे, एक तो ये स्ट्रक्चर आएगा या फिर ये स्ट्रक्चर आएगा। तो मैं थोड़ा सा यहाँ स्ट्रक्चर ये ले रहा हूं, तो ऊपर सी गया है, नीचे ए और यहाँ बी आया है, तो ये सी ए बी नाम का ट्रायंगल, उसको एबीसी भी कह सकते हैं। अब यहाँ मैं फिर से वही टारगेट करता हूं कि ये सी से ऊपर वाले वर्टेक्स से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं बेस के ऊपर, तो बेस आता है ए बी, तो ए बी के ऊपर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ ये सी डी नाम का जो परपेंडिकुलर है ये तैयार होता है। और ये सी डी अगर ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो फिर से आपको इस राइट साइड के ट्रायंगल की तरफ एक बार जाना है। इस ट्रायंगल में भी राइट साइड का पार्ट यूज करो ट्रायंगल का। तो इस छोटे ट्रायंगल में एक एंगल 90 है, और इस वर्टेक्स के नाम से ही इस एंगल को आपने बी कहा है। तो आपका टारगेट ये है कि यहां भी इस ट्रायंगल में भी साइन ऑफ कैपिटल भी निकालना चाहते हैं। तो साइन ऑफ कैपिटल भी क्या होगा? साइन ऑफ कैपिटल भी होगा, साइन को क्या चाहिए? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। 90 के सामने वाली साइड तो हाइपोटेनस रहती है, तो यहाँ अपोजिट साइड है सीडी और हाइपोटेनस इस ट्रायंगल का है बीसी, और बीसी को ही क्या है आपने यूज किया है, लेटर ए यूज किया है, क्योंकि वो ए वाले एंगल के सामने वाली साइड है। तो यहां से आप कह सकते हैं कि सीडी कितना मिला है? सीडी की वैल्यू मिली है ए इंटू साइन ऑफ बी। सो सीडी इज इक्वल टू ए इंटू साइन ऑफ बी। और आप इस ट्रायंगल का एरिया अगर निकालते हैं तो क्या होगा? मैं अगर इस ट्रायंगल का एरिया निकालता हूं तो ट्रायंगल वही नाम कैपिटल एबीसी से अगर काउंट करते हैं तो ये होगा वंस अगेन 1/2। बेस क्या है? बेस है एसी, और एसी की लेंथ आपने कौन से लेटर से डिनोट की है? सी। तो बेस के लिए सी आता है, और हाइट की इस ट्रायंगल का, हाइट ट्रायंगल का तो सीडी है, और सीडी की वैल्यू क्या मिली है? सीडी क्या मिला है? तो ये है ए इंटू साइन ऑफ बी। और ये 2 अगर ट्रांसफर करते हैं लेफ्ट में, तो 2 ट्रांसफर करने के बाद क्या मिलेगा? ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू सी इंटू ए, मीन्स ए इंटू सी। दो नंबर मल्टीप्लीकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं, इसलिए ये ए इंटू सी लिख सकते हैं, और साथ में कौन सा? साइन इंटू कैपिटल बी। यहाँ साइन के साथ कौन सा एंगल मिला है? कैपिटल बी मिला है। ये किसकी वैल्यू मिली है? वही जो आपने यहाँ तैयार की है। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू एबी साइन ऑफ सी। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू एसी साइन ऑफ बी। और एक बार फिर से टर्न करो ट्रायंगल को, एक बार फिर से टर्न करो, अब ऊपर आएगा बी और नीचे आएगा सी ए। तो यहाँ बेस क्या होगा? बेस होगा सी ए। सी ए के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो ऊपर के वर्टेक्स से, तो ये बीडी परपेंडिकुलर होगा। बीडी परपेंडिकुलर से यहाँ 90 आता है, यहाँ का एंगल आपको ये मिला है, और इस ए को अगर साइन के साथ अटैच करते हैं तो क्या होगा? बीडी की वैल्यू आपको तैयार करनी है यहाँ हाइट के लिए एरिया निकालते समय। तो यहाँ इसकी वैल्यू मिलती है साइन ऑफ ए इज इक्वल टू, साइन ऑफ ए इज इक्वल टू, ये तीसरे ट्रायंगल से उसका जो राइट साइड का पार्ट है वहां से आप साइन ए निकालते हैं, तो क्या होगा? बीडी अपॉन दिस ए सी, और ये सॉरी बीडी अपॉन ए बी, और ए बी को आपने स्मॉल सी से डिनोट किया है। सो दिस साइन ऑफ ए इज इक्वल टू बीडी अपॉन ए बी, और ए बी को आपने कहा है सी। तो यहाँ आपका टारगेट है बीडी निकालना है, जिसको आपने हाइट कहा है निकालने के लिए। तो बीडी क्या होगा? बीडी होगा सी इंटू साइन ऑफ ए। और इस ट्रायंगल का एरिया निकालते समय आपको फॉर्मूला वही यूज करना है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 रहेगा, 1/2 रहेगा। बेस क्या है इस ट्रायंगल का? बी, और हाइट बीडी है, और बीडी की वैल्यू क्या है? बीडी की वैल्यू है सी इंटू साइन ऑफ ए। और ये जो आपका 2 है फिर से लेफ्ट में ट्रांसफर करेंगे, तो ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू क्या मिलेगा? स्मॉल बी स्मॉल सी, स्मॉल बी स्मॉल सी, और साइन के साथ कौन सा एंगल आपको मिला है? ए एंगल मिला है। तो एक बार सी मिला है, एक बार बी मिला है, एक बार सी मिला है। अब ये तीनों इक्वेशन को अगर एक बार ऑब्जर्व करते हैं तो ये पहला ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तीनों की लेफ्ट साइड सेम। जब तीनों के लेफ्ट साइड सेम है, इसका मतलब है
कि आप उनके राइट साइड को भी इक्वेट कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं, इक्वेट लिख करके लिख सकते हैं, इक्वल दो तीनों के बीच में लिख सकते हैं. सो फ्रॉम 1 to 3 आई एम यूजिंग द इक्वलनेस बिटवीन देयर राइट साइड. सो राइट साइड में अगर इसको पहले लेता हूं नंबर 3 की राइट साइड, तो राइट साइड है BC इंटू साइन ऑफ ए. मिडल वाले की अगर राइट साइड लेते हैं तो AC इंटू साइन ऑफ B, और फर्स्ट वाले की राइट साइड लेते हैं तो AB इंटू साइन ऑफ C. अब ये इक्वल में जो तीनों है इनको हर एक को अगर डिवाइड करते हैं स्मॉल ABC प्रोडक्ट से, सो डिवाइडिंग दिस रिलेशन बाय A इंटू B इंटू C. तो तीनों को ABC से डिवाइड करने के बाद यहाँ BC कैंसिल होगा और नीचे क्या मिलेगा A. यहाँ AC कैंसिल होगा, B यहाँ रिमेनिंग होगा, और यहाँ AB कैंसिल करके आपको नीचे C मिलता है. तो आपको मिला क्या है, साइन A अपॉन A इज इक्वल टू साइन B अपॉन B इज इक्वल टू साइन C अपॉन C. अब कोई रिलेशन आपके पास अगर इक्वलनेस मेंटेन करता है तो उस रिलेशन को अगर आप रेसिप्रोकल में लेते हैं तो भी वो होल्ड होता है. तो आपको ऊपर ये चाहिए, रिलेशन प्रूव करते समय ऊपर ये चाहिए, आप नीचे भी रख सकते हैं, ये भी अलाउड है. आप ऊपर अगर ये लेना चाहते हो तो इस रिलेशन को रेसिप्रोकल के लिए ट्रांसफर करो, तो ये होगा स्मॉल a अपॉन साइन ऑफ कैपिटल A इज इक्वल टू B अपॉन साइन ऑफ कैपिटल B इज इक्वल टू C अपॉन साइन ऑफ कैपिटल C. So this is the proof, or this complete the proof of this first rule, that is called as a sine rule. So why we are saying it is sine rule? Because in 3 places we are using sine ratio to the angles. Now what are the different forms of the sine rule which can be used in the examples? So different forms of the sine rule in triangle ABC, if I consider this A upon sin A is equal to B upon sin B is equal to C upon sin C. These 3 values, as we are seeing, these 3 values are equal. तो इक्वल है तो कोई तो भी नंबर होगा, बराबर है. पहली वैल्यू, पहले दोनों का रेशियो, दूसरे दोनों का रेशियो और तीसरे दोनों का रेशियो, ये इक्वल मेंटेन करता है. तो रेशियो को कुछ तो भी वैल्यू मेंटेन होती है. वो वैल्यू आप कहना चाहते हैं तो वैल्यू होती है ट्वाइस ऑफ R. ये R क्या है? ये R रेडियस के लिए यूज किया जाता है. अब यह रेडियस ट्रायंगल में क्या है, तो ये जो ट्रायंगल को अगर आप ये तीनों वर्टाइसेस को ऐसा एक सर्कल ड्रॉ करो, ऐसा एक सर्कल ड्रॉ करो, जो सर्कल ये तीनों वर्टाइसेस से पास होगा, जो सर्कल ये तीनों वर्टाइसेस से पास होगा, उस सर्कल की जो रेडियस होगी, उस रेडियस को अगर मैं R कहता हूं, कैपिटल ABC से ट्रायंगल जो तैयार होता है, वो ट्रायंगल का स्मॉल ABC एंड कैपिटल ABC जो आपको मेंटेन कर रहा है, ये इक्वलनेस कौन से नंबर के साथ इक्वल आता है, तो ये नंबर है ट्वाइस ऑफ R. और R क्या है? R इज द सर्कम रेडियस ऑफ दिस ट्रायंगल ABC. तो ये ट्रायंगल ABC की जो सर्कम सर्कल है, ट्रायंगल ABC का जो सर्कम सर्कल है, उस सर्कम सर्कल की रेडियस का डबल ये फिक्स रहता है. कोई भी ट्रायंगल यूज करो, उसके साइड्स आप मेंटेन करो, और उस ट्रायंगल के वर्टाइसेस से अगर ये सर्कल पास होता है तो ये रेशियो की वैल्यू हमेशा ट्वाइस ऑफ द सर्कम रेडियस इतनी ही मेंटेन होती है. अब ये ट्वाइस ऑफ R एक नया नंबर आता है जिसको आप डायमीटर भी कह सकते हैं. रेडियस का डबल करके क्या आता है, उस सर्कल की डायमीटर होती है. तो वो नंबर है, उस नंबर को अगर मैं K कहता हूं, इंस्टेड ऑफ सेइंग ट्वाइस ऑफ R, इफ आई कॉल इट एज ए K, देन फर्स्ट विथ K, पहले को K के साथ अटैच करते हैं तो क्या होगा, तो यह A अपॉन साइन ए इज इक्वल टू अगर K है, तो यहां ये साइन ए अगर K के साथ, जिस तरह से आप यहां लिख रहे हैं, A अपॉन साइन ए अगर मैं इस तरह से K के साथ लिखता हूं, ए पहले को इस K के साथ यूज करेंगे तो ये स्ट्रक्चर आता है. और ये साइन ए अगर राइट में ट्रांसफर करते हैं तो क्या मिलेगा, कुछ एग्जांपल में आगे जाके आपको ये कंसेप्ट यूज करना है, साइन रूल को यूज करना है. इसका मतलब क्या है, तो ये तीनों को इक्वेट K के साथ करना है. और यहां से क्या होगा, A की वैल्यू मिलेगी, यहां से क्या मिलेगा, B मिलेगा, K इंटू साइन ऑफ कैपिटल B
यहां से क्या मिलता है, C इज इक्वल टू के इंटू साइन ऑफ कैपिटल सी। और एक स्ट्रक्चर आता है, स्ट्रक्चर कौन सा है कि बी इंटू साइन ऑफ ए। यहां ये दोनों अगर आप लेते, पहले दोनों को रेशो अगर लेते, पहले दो रेशो अगर इक्वेट करते हैं तो पहला और दूसरा ये तीनों इक्वल है, तो ये तीनों इक्वल है तो उसमें से कोई भी अगर दो यूज करते हैं तो दो का स्ट्रक्चर ये है, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी। और यहां आप अगर इस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू यूज करते हैं तो ये दोनों का अगर मैं पहले लेता हूं बी इंटू साइन ए, तो ये पहले दोनों का आता है बी इंटू साइन ए, और ये दोनों का आता है ये इंटू साइन बी, तो ये इक्वल रहता है। ये दोनों और ये दोनों कभी आते हैं तो इक्वल आता है, और ये दोनों का कभी अगर सब्सट्रैक्शन किया जाता है, मान लो बी इंटू साइन ए माइनस ए इंटू साइन बी, चेंज कैसा हो रहा है, समझ में आ रहा है? चेंज कैसा हो रहा है, आप यह स्मॉल बी ले रहे हैं तो उस टाइम एंगल को कौन सा ले रहे हैं, स्ट्रक्चर कैपिटल ए, बराबर है। और यहां स्मॉल ए लेते हैं तो साइन को एंगल कौन सा दे रहे हैं, कैपिटल बी। तो अगर इस तरह से इंटरचेंज करते हैं, बी है तो साइन को ए दे दो और ए है तो साइन को बी दे दो, ऐसे दो स्ट्रक्चर अगर सब्सट्रैक्शन में आते हैं तो उसकी वैल्यू क्या लेते हैं, जीरो आती है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर अगर लेफ्ट में लाते हैं तो वैल्यू जीरो ही मेंटेन होगी। उसी तरह से सी, ये दोनों को अगर इक्वेट करते हैं तो सी इंटू साइन ऑफ बी ये ऑलवेज इक्वल होगा किसके साथ, बी इंटू साइन ऑफ सी, और जब लेफ्ट में लाएंगे तो जीरो होगा। उसी तरह से पहला और तीसरे के साथ अटैच करते हैं, पहला और तीसरा तीनों भी इक्वल है, उसमें से पहला दूसरे के साथ यूज करेंगे तो ये रिलेशन आता है, दूसरा तीसरे के साथ रिलेशन यूज करेंगे, इक्वेट करेंगे तो ये रिलेशन आता है, और पहला और तीसरा इक्वेट करते हैं तो ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, से क्या तैयार होगा, सी इंटू साइन ए, सी इंटू साइन ए इज इक्वल टू आता है ए इंटू साइन ऑफ सी। तो इस तरह से सी और ए और सी इस तरह से इंटरचेंज करते हैं तो दोनों इक्वल आते हैं। और इसका ही स्ट्रक्चर अगर यूज करते हैं दूसरा, तो मैं अगर ये साइन ए को यहां ट्रांसफर कर, पहले दोनों को यूज करता हूं मैं, ये पहले दोनों को यूज करेंगे तो पहले दोनों को यूज करने के बाद क्या होगा, तो यह नीचे वाला जो नंबर है ये ऊपर ट्रांसफर करना है और ऊपर का नंबर नीचे आ सकता है, तो ये स्ट्रक्चर तैयार होता है। बी अगर नीचे आता है तो ये साइन ए को आप ऊपर भी ले सकते हैं, तो ये साइन ए अपॉन साइन बी का स्ट्रक्चर तैयार होता है। तो ये स्ट्रक्चर आगे एग्जांपल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये साइन रूल ही है, लेकिन अलग फॉर्म में आप उसको यूज कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। तो ये बाय बी अगर कभी आता है तो उसको ही लिख सकते हैं साइन ए अपॉन साइन बी, बी बाय सी आता है तो उसको ही लिख सकते हैं साइन बी अपॉन साइन सी। तो ये साइन रूल सबसे इजी है और ये रिलेट करता है किसके साथ, तीन साइड्स एंड तीन एंगल्स। इसकी कैपेसिटी देखो कि ट्रायंगल के जो 6 पैरामीटर है, ट्रायंगल के जो 6 पैरामीटर है, ये सभी पैरामीटर एक ही रूल में वो इस तरह से रिलेट करता है, ए बाय साइन ए, बी बाय साइन बी इज इक्वल टू सी बाय साइन सी। इस तरह से कुछ अननोन है और कुछ सप्लाइड है तो उसका इस साइन रूल का यूज करके रिमेनिंग वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो एक एग्जांपल लेंगे जिससे आपको साइन रूल यूज करने की आइडिया मिल सकती है। तो साइन रूल के ऊपर एक एग्जांपल, जिस तरह से साइन रूल है उसी तरह से आपको कोसाइन रूल आएगा, उसके बाद में एक प्रोजेक्शन रूल आता है। तो एग्जांपल फर्स्ट ऐसा है, इन ट्रायंगल एबीसी इफ स्मॉल ए की वैल्यू गिवन है दैट इज 2, बी की वैल्यू आपको सप्लाइड है दैट इज 3, एंड तीसरी वैल्यू दी है जो है साइन ऑफ कैपिटल ए। साइन ए के साथ वैल्यू मेंटेन करता है 2/2। आपका टारगेट है इस एंगल बी की वैल्यू फाइंड करनी। बी फाइंड करना है इसका मतलब वो एंगल बी होता है, कैपिटल में लेटर आता है एंगल के लिए, स्मॉल में आता है लेंथ ऑफ द साइड्स के लिए। तो ये साइड्स दो दिए है, एक साइन के साथ एंगल ए की वैल्यू ऑलरेडी सप्लाइड है, आपको एंगल बी की तरफ जाना है
तो ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर होगा साइन रूल का जो हेल्प करता है? तो आप अगर यहाँ देखते हैं ये फॉर्म्स में आपको ए मालूम है, बी मालूम है, ए मालूम है, बी मालूम है, और आपको साइन ए भी मालूम है, साइन ए भी मालूम है, और आपको क्या निकालना है? आपको साइन बी निकालना है। तो साइन बी निकालने के बाद उस बी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट बी तो नहीं आएगा, लेकिन साइन बी पहले आता है, और साइन बी का वैल्यू चेक करके बी की वैल्यू डिसाइड कर सकते हैं। तो ये गिवन डाटा को आप अगर लिखते हैं, सो गिवन small a is equal to 2, small b is equal to 3, and sine of capital A is equal to 2 by 3 by sine rule. We have साइन रूल से आप अगर ये डायरेक्ट फॉर्म यूज करना चाहते हैं तो भी परमिटेड है। तो साइन रूल से क्या लिख सकते हैं? a अपॉन बी इज इक्वल टू क्या होता है? साइन ए अपॉन साइन बी। इसका मतलब आप अगर स्मॉल लेटर ऊपर यूज करते हैं तो उसका ही कैपिटल लेटर ऊपर आता है साइन के साथ। ए है तो ए ही आएगा, बी है तो बी ही आता है। और ये ऊपर की इंफॉर्मेशन अगर यूज करते हैं तो ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है 3, साइन ए की जगह पे क्या है? वो साइन ए की टोटल वैल्यू आपको दी है एंगल अटैच करके 2/3, और ये आपको साइन बी को साइन बी ही रखना है। अब आपका टारगेट है ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लेना है। तो क्रॉस से क्या आएगा? ट्वाइस ऑफ साइन बी इज इक्वल टू ये 3 टाइम्स इंटू 2/3। तो यहां से क्या होगा आगे के स्ट्रक्चर में? साइन बी इज इक्वल टू ये 3 कैंसिल होगा, ये 2 मिलता है, और ये साइन विथ बी फिर से एक बार 2/2 से क्या मिलेगा? 1। जब साइन बी के साथ 1 मेंटेन करता है तो उस बी की तरफ टारगेट आपका होना चाहिए। ऐसा कौन सा एंगल है जो छोटा होगा? सबसे छोटा ऐसा कौन सा एंगल है जो साइन को अटैच करते हैं उसकी वैल्यू 1 मेंटेन करता है? मालूम है? अगर नहीं मालूम तो टेबल आप यूज कर सकते हैं जो आपके लॉग टेबल में दिया जाता है वैल्यूज की, लेकिन ये मालूम बेसिक जो एंगल्स के साथ साइन कॉस टैन की वैल्यू चाहिए वो मालूम होनी चाहिए। तो साइन जब 1 मेंटेन करता है तो सबसे छोटा एंगल जो होता है वो 90 वाला होता है। तो उस बी की जो वैल्यू है ये आपको तैयार करनी पड़ती है उसकी राइट साइड की वैल्यू यूज करके। तो साइन 1 मेंटेन करता है, इसका मतलब बी की वैल्यू 90 डिग्री होगा, और उसको ही अगर रेडियन में कहना है तो π/2 रेडियन कह सकते हैं। तो इस तरह से क्या दिया है? ए दिया है, बी दिया है, साइन ए दिया है, और आपका टारगेट था बी की वैल्यू निकालनी है। कैपिटल बी मीन्स एंगल बी की वैल्यू निकालनी है, तो आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ये पहला एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल यूज करेंगे जो प्रूव करने के लिए आपको कहा जा सकता है। तो साइन रूल, कोसाइन रूल यूज करके कई सारे एग्जाम्पल्स आपको प्रूव करने हैं। तो उस कैटेगरी का एक प्रूव करने का एग्जाम्पल इन ट्रायंगल एबीसी। कोई भी एग्जाम्पल दिया जाता है तो ट्रायंगल का नाम स्पेसिफाई करना पड़ेगा, तभी वो कहेगा कि ये जो स्मॉल एबीसी और कैपिटल एबीसी आपने यूज किए है वो एंगल और लेंथ के लिए है। सो प्रूव दैट ए इंटू साइन ऑफ बी माइनस साइन ऑफ सी प्लस बी इंटू साइन ऑफ कैपिटल सी माइनस साइन ऑफ कैपिटल ए प्लस सी इंटू साइन ऑफ कैपिटल ए माइनस साइन ऑफ बी, दिस ऑल इंफॉर्मेशन इज इक्वल टू 0। ये आपको प्रूव करना है। पूरी लेफ्ट साइड ये 0 मेंटेन करती है। तो ये प्रूव करने के लिए प्रूफ में आप लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना चाहते हैं। सो लेफ्ट साइड, वी कंसिडर लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में है ए इंटू साइन ऑफ बी माइनस साइन ऑफ सी
प्लस बी इंटू साइन ऑफ सी माइनस साइन ऑफ ए प्लस सी इंटू साइन ऑफ ए माइनस साइन ऑफ बी। अब ये बाहर के नंबर से, ये नंबर है, स्मॉल ईडीसी तो नंबर है, तो इससे आप इंटरनल नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ए का ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का साइन बी के साथ माइनस ए इंटू साइन सी मिलेगा, प्लस बी का साइन सी के साथ और बी का माइनस साइन ए के साथ, और सी का ये दोनों के साथ सी इंटू साइन ऑफ ए आएगा, माइनस होगा और सी इंटू साइन ऑफ बी मिलेगा। अब एक स्ट्रक्चर आपके पास है जो आपको कहता है कि बी इंटू साइन ए है तो ये इंटू साइन बी, ये दोनों इक्वल आते हैं। तो ऐसे फैक्टर्स को आपको इक्वल करना है। ये ए और बी लेता है और यह भी ए और बी, तो ए स्मॉल में है तो साइन के एंगल में कैपिटल बी, और इसमें अगर इसको साथ लेते हैं तो बी है और यह साइन के एंगल में कैपिटल ए है। ऐसी कौन सी और पेयर आपको मिलती है? लेट अस चेक। बी साइन सी है, पॉजिटिव वाली अगर पहले लेना चाहते तो बी साइन ऑफ कैपिटल सी है और सी है तो साइन ऑफ कैपिटल बी माइनस के साथ है, तो यह सी साइन ऑफ बी है। तो ये दोनों बीसी बीसी इंटरचेंज करके आपको मिले हैं। और एक पेयर है जिसको आप कहना चाहते हैं तो सी इंटू साइन ऑफ ए है, मीन सी एंड ए यूज किया है। ऐसा एक टर्म है जिसमें सी और ए यूज किया है, तो इसमें ए स्मॉल में यूज किया है और सी कैपिटल में यूज किया है। तो आप अगर इस रिलेशन को यूज करेंगे, साइन रूल को यूज करेंगे, तो साइन रूल आपको ये कहता है कि ये दोनों इक्वल है, और जो कोई क्वांटिटी इक्वल होती है उसको अगर आप सब्सट्रैक्शन में लेते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 0। तो इस ब्रैकेट को इस साइन रूल से बी साइन ए माइनस ए साइन बी, उसको अपोजिट में लिख सकते हैं। तो ये दोनों जब आते हैं, इसको अगर राइट में ट्रांसफर करेंगे तो लेफ्ट से 0 आता है। मैं अगर इसको राइट में ट्रांसफर करता हूं तो ये मिलता है, राइट में ट्रांसफर करेंगे तो लेफ्ट में 0 ही आता है। तो ये साइन ऑफ बी माइनस राइट में ट्रांसफर करेंगे तो बी साइन ऑफ ए। तो ये स्ट्रक्चर जब आता है, ये साइन ऑफ बी माइनस बी साइन ऑफ ए, ये स्ट्रक्चर जब आता है तो उसकी जगह पे क्या ले सकते हैं? 0। इसी तरह से आपको ये जो मिडिल वाला मिला है, मिडिल वाले में भी क्या मिला है? बी साइन ऑफ सी, और इस सी साइन ऑफ सी को अगर राइट में ट्रांसफर करते हैं, यह इक्वल है, तो ये क्वांटिटी अगर राइट में ट्रांसफर करती है तो माइनस के साथ आती है और यह 0 मिलता है, तो ये ब्रैकेट भी आपको क्या मिलेगा? 0। उसी तरह से सी ए सी, तो ये क्वांटिटी अगर आप राइट में, इसको अगर लेफ्ट में लेके आते हैं, यह लेफ्ट में चाहिए, तो सी साइन ए माइनस ए साइन सी, तो इनकी वैल्यू भी 0 ही आती है। तो 0 कितने भी बार ऐड करेंगे तो 0 ही रहेगा, और यही उस रिजल्ट की राइट साइड आपको एक्सपेक्टेड थी। तो LHS इज इक्वल टू RHS, दैट्स व्हाई दिस रिजल्ट होल्ड्स। तो इस तरह से आप साइन रूल को यूज करना चाहते हैं एग्जाम्पल्स में। वी विल स्टॉप हियर।